students, welcome to Business Studies class. So we have started our second chapter, that is a form of business organization. Okay, so there are total 5 form of business organization. So first one is sole proprietorship. We are completed the things about sole proprietorship, that is a feature of sole proprietorship and merits and limitation of sole proprietorship. We are completed the things. Second form of business organization, that is a joint Hindu family business, that is also we are completed, that is a feature along with merits and limitation. Now third form of business organization, that is the partnership. Okay, so partnership, what is a partnership and what are the features of partnership, we are completed in last video. So in this video we are going to see the detailed concept of merits and limitation, or you can call advantage and disadvantage of partnership business. Okay, so now let's see what are the merits of partnership. Okay, so first one, easy information and closure. So what is a partnership business? No, that is easy form, otherwise you can call the easy easy to start and close that business. Okay, so how your business can be started within the partnership business? So start by just putting an agreement with the each other or with partners. Okay, and registration it is not compulsory, so it becomes easy, and closure is also easy. So any kind of maybe sole proprietorship may be there, joint in the family business may be there. So within joint in the family business it is not going to close, it is going to be continued. But if you want to close the things, you can close. But within the partnership also, when you are closing your business, it is easy. So how the formation of a partnership business? So there is no need to registration of your business. Okay, so how you should go for the registration of your business? Within the district level, there is one registration office will be there. So you have to visit there and you have to register your company, you have to register your enterprise, you have to register your organization. But it is not compulsory for the partnership business, it is not compulsory for the sole proprietorship business. Okay, so it is easy. Registration, it is not easy. If you didn't go for the registration also, there will be no problem in the future. So you can carry your business without the registration of your business. And first, only one agreement it is required. What is that? You should go for, when you are starting your business, how many partners are there? Suppose 4 partners are there or 3 partners are there. You should go for the agreement with each other. Means within that agreement you should describe what is the company name, your detailed address. You will see within the partnership deal. Okay, so you should go the detailed agreement with your partners. Means how much you are invested, how much your partnership is going to be invested, what are the ratio to distribute the profit and loss. So everything we should mention before going to start our partnership business. Okay, so partnership business का first merits और you can call advantage क्या है? पार्टनरशिप बिजनेस हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सो पार्टनरशिप बिजनेस हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं. मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस रहता है, वहाँ पे जाके आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका कंपनी का नाम वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. बट फॉर सम केसेस इट इज कंपलसरी. बट पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो अथवा आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है. आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको फ्यूचर में कुछ भी गवर्नमेंट फाइन वगैरह नहीं लगाएंगे. सो यू कैन रिलैक्स विद दैट. ओके, सो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है. व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस यू कैन स्टार्ट. बट पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते वक्त क्या करना चाहिए? एग्रीमेंट वो कंपलसरी है. एग्रीमेंट मतलब क्या है? जितना भी आप पार्टनर्स रहते हो उस 3 पार्टनर है, सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स, सो उस आप आपस में ही आपका एग्रीमेंट बनाना चाहिए. मतलब आप कितना शेयर कर रहे हो, आपका पार्टनर कितना शेयर कर रहा है, वो सभी डिटेल एग्रीमेंट रखना चाहिए. नहीं तो जब भी आपका प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, शेयरिंग कंसेप्ट आएगा, तब पार्टनर को कितना देना है, हम खुद को कितना लेना है. सो दैट इज अ डिफिकल्ट एट दैट टाइम. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर पार्टनरशिप बिजनेस यू शुड क्लियर विथ how much percentage he is going to invest and how much, what are the ratio to share the profit and loss. मतलब बिजनेस में जितना भी आपका प्रॉफिट आएगा वो शेयर करने के लिए, सपोज इसने 30% बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसने 50% इन्वेस्ट किया, इसने 20% बिजनेस में इन्वेस्ट किया. सो पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं रहता कि सब मतलब सभी ने 50-50% इन्वेस्ट करना चाहिए. ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं रहता. सो क्या व्हाट आर द कंसेप्ट? आपका कितना
एबिलिटी है, आपके पास कितना पैसा है, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन इन्वेस्ट। इसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट आना चाहिए, इन दोनों ने कम इन्वेस्ट किया है तो कम आना चाहिए, लॉस हुआ तो इसको ही ज़्यादा आएगा, इन दोनों को कम आएगा। सो दैट इज द रेशियो। तो वो रेशियो कहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, वो एग्रीमेंट में लिखा होगा कि आप प्रॉफिट होगा बिजनेस में तो कितना शेयर करेंगे, लॉस होगा बिजनेस में तो कितना शेयर करेंगे। सो एवरीथिंग which is described within the agreement. Okay, so that is the one of the merits of partnership. और आपको बिजनेस आपका बंद करना है, कुछ भी लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, ड्यू टू एनी रीजन, हाउ यू वांट टू क्लोज योर बिजनेस, यू कैन इजीली क्लोज। उसके लिए भी कुछ भी आपको रजिस्टर ऑफिस में जाके कुछ प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि इफ यू वांट टू क्लोज यू कैन क्लोज योर बिजनेस एट एनी टाइम। So second merits of partnership is balanced decision. Balanced decision is going to be balanced. Okay. So how it can be balanced? So all partners are working according to their knowledge and experience. So reduce burden and increase the quality judgment and more balanced decision. So how? See, within the sole proprietorship, what is going to happen? So only single person who are owner of that business, only single person is responsible to take all decision regarding their business. Okay, but within the joint venture family business, what is going to happen? So who are a karta? So karta is responsible for all the decisions. So it is a burden on sole proprietorship also, and as well as it is a burden on karta also. But within the partnership business, it is a benefit to all the partners, because all the partners are working together. No, so all the partners are working together. So according to their individual knowledge, according to their individual experience, they can take their decision, or by judgmental, by taking the opinion of all the partners, by judgmental they are going to take a decision. So it makes a more balanced decision, because one single person is not expert in all the activities. So that's why if there are more people who are contributed for the activities, so they are expert within the different activities. So according to their knowledge, according to their experience, they can able to take their decision in their field. Okay, so इसका मतलब क्या है बैलेंस डिसीजन का? सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, सभी बिजनेस का डिसीजन जो भी रहता था वो एक ही इंसान लेता था, बिजनेस का ओनर रहता था, उसमें वो ओनर भी वही है, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है, कंट्रोल भी वही कर रहा है। सो एक ही इंसान को सब कुछ नॉलेज नहीं होता, ठीक है, तो इसने कुछ भी डिसीजन लिया तो वो बिजनेस के लिए कितना फायदेमंद रहेगा वो कोई भी नहीं बता सकता, इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। ज्वाइंट विद फैमिली बिजनेस में क्या रहता था, जो भी बिजनेस का डिसीजन रहता था वो बिजनेस का वो फैमिली का जो भी करता, हेड ऑफ द फैमिली, वो डिसीजन लेता था, वो भी एक ही इंसान डिसीजन लेता था। कभी एक इंसान सभी एक्टिविटी में परफेक्ट नहीं रहता, तो उसने जो भी डिसीजन लिया है वो 100% सही होगा ऐसा कुछ भी नहीं। बट पार्टनरशिप में क्या रहता है, सभी तीन मतलब कितना पार्टनर्स है वो आपस में तीनों मसलत करके, मीटिंग करके, उनके नॉलेज की तरह, उनके एक्सपीरियंस की तरह डिस्कशन करके डिसीजन लेते। सो दैट डिसीजन इज मोर बैलेंस, क्योंकि सब डिफरेंट क्या बोलते हैं फील्ड में एक्सपीरियंस रहते हैं, सब डिफरेंट नॉलेज, सबको डिफरेंट नॉलेज रहता है, तो वो नॉलेज इफ यू मर्ज दैट नॉलेज, सो देयर विल बी मोर बैलेंस डिसीजन। मतलब सबका ओपिनियन लिया, सबका मीटिंग करके डिसीजन लिया, तो दैट इज अ मोर बैलेंस डिसीजन विल बी देयर। सो इट इज अ बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द डिसीजंस। ओके, सो नेक्स्ट मेरिट्स इज so next merit is more funds. More funds means what? All the partners contribute their capital in the firm. See, all the partners, so how many partners they are joining, they are together, they are doing their business. So all individual partners, they are contributed their capital and for the money for the business. But what is going to happen in sole proprietorship and joint venture family business? So sole proprietorship, it is a one single person. So he is with a limited source. So he is with a limited capital. So they are not able to contribute more funds for their business. Joint venture family business, what is going to happen? Because karta, what are the properties of karta, what are the funds of karta, what are the capitals of karta, that is only going to invest within the business. So all the co-sponsors have the share within the property of karta only. So they don't have individual property. So
So what are the property of Karta only? They are with the shares of heredity, they are going to get their benefit. So co-sponsors don't have their individual property. So what are the property of Karta? That is only Karta is going to invest it within the business. So it is also limited source there. So more funds are not going to generate within the joint family business also. But within the partnership business, if three different persons or more than two persons they are working together, means what are personal property, what are the personal capital is going to invested, second also same, third also same. Means they are invested their personal, means they are invested their personal capital for the firm. So it can generate a large amount of fund. So more funds का मतलब क्या है? See, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था? मोर फंड्स का मतलब ज्यादा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, दैट इज द मोर फंड्स. ओके, सो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में क्या होता था? एक ही इंसान सब कुछ मैनेज करता था. सो एक ही इंसान के पास कितना पैसा होगा, सो कितना पैसा होगा उतना ही इन्वेस्ट करेगा ना, ज्यादा तो पैसा इसके पास नहीं रहेगा. सो व्हाट आर द इन्वेस्टेड मनी बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप? इट इज लिमिटेड. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया तो वो भी कम रहता था. ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में क्या होता था? एक ही इंसान के सभी बच्चे मिलकर बिजनेस कर रहे थे. ठीक है, जो दैट इज द ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस. ओके, सो इस मालिक का और यू कैन कॉल कर्ता का जो भी प्रॉपर्टी रहता था वही सेम प्रॉपर्टी तीनों का भी था. कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं था, बिकॉज दे आर को-स्पॉन्सर्स and he is a कर्ता. So what are the properties of कर्ता? कर्ता की जो भी प्रॉपर्टी रहती थी वही को-स्पॉन्सर्स की प्रॉपर्टी रहती थी. इनका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं थी यहाँ. So what are the funds invested within the joint into family business? That is by only कर्ता. Okay, so कर्ता की जितनी भी प्रॉपर्टी that is also limited the things. So यहाँ पे भी ज़्यादा फंड ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता था. बट पार्टनरशिप में क्या होता है? तीनों डिफरेंट फील्ड से रहते हैं, तीनों अलग अलग इंसान रहते हैं. सो इनका कुछ भी पर्सनल सेविंग्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, वो सभी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो. सो यहाँ पे आपका मनी और कैपिटल वो ज़्यादा कलेक्ट होता है. सो दैट इज द मोर फंड्स विद इन द पार्टनरशिप बिजनेस. नेक्स्ट फीचर क्या है? शेयरिंग ऑफ रिस्क. शेयरिंग ऑफ रिस्क, सो reduce anxiety, burden and stress of individual partners. Anxiety का मतलब है टेंशन. So how the sharing of risk within the sole proprietorship, single person is there. So for all risk is responsible. Maybe profit or loss, everything the sole is responsible. Joint into family business में कर्ता is responsible for that. See, these are the helping to the कर्ता, no doubt. But risk it is going to face back कर्ता only, and that is ultimately loss to all the co-sponsors also. But within the partnership business, what is going to happen? What are the risks arise within the business? It can be shared along with all the partners. It is not on single head. Sole proprietorship और joint into family business में क्या था? जो भी business में रिस्क आने वाला था वो एक ही इंसान के माथे के ऊपर था. एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप में वही बिजनेस कर रहा है तो जो भी लॉस आएगा उसको ही आएगा. ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस में कर्ता के ऊपर आएगा. और पार्टनरशिप में क्या होगा? सभी मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ भी लॉस आया प्रॉफिट आया सभी मिलकर शेयर करेंगे. प्रॉफिट आया तो भी शेयर करेंगे, लॉस आया तो भी तीनों मिलकर लॉस शेयर करेंगे. एक ही इंसान के ऊपर बर्डन नहीं रहेगा पार्टनरशिप बिजनेस में. बट ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान के ऊपर बर्डन रहता है. सो एंग्जाइटी मतलब एक ही इंसान के ऊपर टेंशन रहेगा, बर्डन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा. सो एक ही इंसान के ऊपर रहेगा. बट पार्टनरशिप में वैसा नहीं रहता क्योंकि सभी मिलके काम कर रहे हैं तो जो भी बिजनेस का रिस्क आएगा सभी मिलके सभी मिलके शेयर करेंगे. इसको भी टेंशन आएगा, सबके ऊपर बर्डन आएगा, सबके ऊपर स्ट्रेस आएगा. बट जो भी बर्डन स्ट्रेस एंग्जाइटी आएगा वो कम आएगा इफ यू कंपेयर विद द सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि उनको सब फेस करना पड़ता है. 100% लॉस मतलब एक ही इंसान को 100% लॉस फेस करना पड़ता है. बट यहाँ पे 100% लॉस होगा तो इसको 50% लॉस होगा, इसको 30%, इसको 20%, ऐसा अकॉर्डिंग टू द रेशियो दे आर गोइंग टू शेयर देयर रिस्क. नेक्स्ट सीक्रेसी. सीक्रेसी का मतलब क्या है? मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सो नॉट कंपल्सरी टू पब्लिश अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स. ओके, सो समटाइम्स इट मे बी अ disadvantage also and sometimes it may be the advantage also. Advantage to their partners and disadvantage to their partners only, but because more publics are not interested in the partnership business. So publics what you call demand is less in case of partnership business. So maintain the confidentiality is
what are the secret information of your business. So how many partners are there? They are going to keep it secretly. If they are not going to keep it secretly, that is loss to their business only. So that's why they are going to keep the things secretly. So not compulsory to publish your accounts and reports. So business में आपके जो भी अकाउंट्स रहता है, मतलब पैसा कितना आया बिजनेस में, आपने अकाउंटेंसी में देखा होगा, डेबिटेड क्रेडिटेड, हाउ मच डेबिटेड हाउ मच क्रेडिटेड, जितना भी पैसा आपके बिजनेस में आया है, जितना भी आपने खर्च किया है, उसका एक अकाउंटिंग बनाना पड़ता है. बट वो अकाउंटिंग जब भी आप टैक्स पे करते हो, नहीं तो कुछ भी इंस्पेक्शन आया आपके बिजनेस में, तब आपको इंस्पेक्शन वालों को वो आपका अकाउंट्स दिखाना पड़ता है. ओके, सो अकाउंट्स दिखाना पड़ता है, बट पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट्स दिखाना कंपलसरी नहीं है. सो इस अकाउंट्स में कुछ तो आपका करप्शन होगा तो भी चल जाएगा यहाँ पे, बट क्योंकि वो दिखाना कंपलसरी, वो पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पे करप्शन होगा तो भी वो आपका छुप जाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज टू द पार्टनर्स. सो क्योंकि वो अकाउंट पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी वहाँ तो जो भी करप्शन आएगा वो ऊपर आएगा. सो दैट्स व्हाई, सो इट इज नॉट कंपलसरी टू पब्लिश योर अकाउंट्स एंड रिपोर्ट. So see, in all sole proprietorship also, joint in the family business also and partnership also, it can maintain the secrecy. मतलब सभी आपका बिजनेस का जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रहता है वो डिस्क्लोज नहीं करना. ओके, सो these are the limits. Now see the limitation of. Now let's see what are the limitations of partnership. Just we are seeing what are the merits, or you can call the advantage of partnership. Now see what are the limitation, or you can call disadvantage, or you can call demerits of partnership business. So first one, unlimited liability. So all of you know now what is the liability. So for business, if you want the money. Okay, so there should be funds required for a business, but one single person is not able to generate all the funds. So that's why you should take the help of your creditors. You should take the help of bank. You are going to take a loan from your bank. Now if you are taking a loan from your bank, that is your responsibility to pay all the debts of that bank. If you are not able to pay all the debts, then your personal properties, it may be a car, it may be a building, it may be any kind of property, are responsible to pay the debts. That properties are going to sold to pay the debts. So that is the unlimited liability. So limited liability means, the limited liability, that means they have more property. Limited liability. Unlimited means their personal properties are responsible to pay the debts. So all partners and their personal property is used to repay the debts. Just like if you are taken a loan to carry out your business, if your personal incomes are not sufficient to pay the debts, that time what are your personal property, car, building, कुछ भी हो, आपको बेच के उसका लोन चुकाना पड़ेगा. सो दैट्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो ये डिसएडवांटेज में क्यों आएगा? क्योंकि हम बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, उसका असर हमारे पर्सनल प्रॉपर्टी पे होगा. मीन्स आपका बिजनेस से आपकी प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो लोन चुका नहीं पा रहे, तो आपका जो भी कार होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, कुछ भी होगा, वो आपको बेच के वो बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा. सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज. सेकेंड क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. लिमिटेड रिसोर्सेज मीन्स सी विदिन द पार्टनरशिप बिजनेस more funds are generated, okay, but they are given one of the disadvantage, that is limited resources. If you compare with the sole proprietorship and joint in the family business, the more funds are going to be generated within the partnership business, but then also they call the limited resources. Why? Because restriction on number of partners, so limited capital investment is there. आपने कंपैरेटिवली देखा सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान सब कुछ इन्वेस्ट करता है, जॉइंट हिंदू में जो भी करता होगा हेड होगा वो इन्वेस्ट करता है, बट पार्टनरशिप में जितना भी पार्टनर है वो सभी उनका पैसा बिजनेस में लगाते हैं. बट यहाँ पे मोर फंड्स होना चाहिए. सो वी आर सीइंग दैट इज मोर फंड्स इन मेरिट्स. मेरिट्स में एडवांटेज में हमने देखा है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा पैसा कलेक्ट होता है, दैट इज द मोर फंड. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हो? लिमिटेड ही रहता है पैसा जो भी कलेक्ट हो रहा है. कंपैरेटिवली सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मोर जनरेट होता है, बट वो भी पैसा बिजनेस के लिए कम बोलते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर. ज़्यादा से ज़्यादा हम पार्टनरशिप बिजनेस 50 लोगों को लेके ही ज़्यादा से ज़्यादा कम 2 लोग
पार्टनरशिप बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग आके पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं। बट वो क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू द रेस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर, क्योंकि 50 से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कैरी आउट नहीं कर सकते, तो जितना भी फंड आएगा वो कम ही होगा बिजनेस में। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड इज इन अंडर द लिमिटेशन। ओके, सो लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो सबने तो सब कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, सो थोड़ा थोड़ा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, बट फिर भी रेस्ट्रिक्शन 50 लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा आके हम बिजनेस करते हैं, तो वो भी लिमिटेड है, जहाँ ज़्यादा फंड तो वहाँ पे क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। यस, there will be the chances of possibility of conflict. Sole proprietorship, he is the sole responsible for everything, so there is no chances of conflict with to whom he is going to do a conflict. Okay, within joint family business all have blood relations, so what is head is going to do, other are blindly follow the things, so there is no chances of conflict. But within the partnership business all people are with a different criteria, different background, different attitude, so some of they are not agree with each other's opinions, so that's why there will be the chances of conflict. Okay, so run by group of people, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके उनका बिजनेस कर रहे हैं, मतलब एक इंसान वहाँ पे नहीं रहता, ज़्यादा लोग रहते हैं, सो इसलिए वहाँ पे कंफ्लिक्ट मतलब कुछ भी क्या बोलते झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है वहाँ पे। सो डिफरेंस इन ओपिनियन, सबका कुछ तो ओपिनियन, ख्याल और सोल्यूशन डिसीजन डिफरेंट होगा। मैंने जो बोला वो दूसरे को हजम होगा या नहीं हमें पता नहीं होता, हमारा ओपिनियन से दूसरा सेटिस्फाई होता है या नहीं हमें पता नहीं होता। मेजॉरिटी बेसिस डिसीजन वहाँ पे लेते हैं। सपोज एक बिजनेस में पार्टनरशिप बिजनेस 10 लोग आके 10-11 लोग आके बिजनेस कर रहे हैं, बट बिजनेस में जो भी डिसीजन लेना है वो सभी एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करके मतलब मीटिंग बना के वो डिसीजन लेंगे। बट क्या होगा, इन 4 लोगों को जो भी डिसीजन के 6 लोग मिलके एक डिसीजन लिया, बट इन 4 लोगों को वो डिसीजन पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा, उनका सोच डिफरेंट होगा, तो क्या होगा वहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। और मेजॉरिटी बेसिस पे डिसीजन लेंगे वहाँ पे, मतलब 11 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो 6 लोग एक तरह ही सोच रहे हैं, तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया है वही फॉलो होगा। इन 4 का जो भी डिसीजन है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी बेसिस डिसीजन लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लोग बोल रहे हैं उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, बट इन 4 लोगों को ये हजम नहीं होता। सो दैट्स व्हाई देयर विल बी चांसेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनका ख्याल, इनका ओपिनियन डिफरेंट रहता है। सो डिसीजन बाय ऑल पार्टनर्स, सो सब डिसीजन लेते हैं बट मेजॉरिटी बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन रहता है। सो दिस आर द लिमिटेशन। नाउ सी सो नेक्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, बिजनेस ज़्यादा चल नहीं सकता पार्टनरशिप बिजनेस में। सो व्हाई एंड विद द डेथ एंड रिटायरमेंट ऑफ एनी partner and other can continue with the new agreement. So we cannot be perfectly define it as a continue or not. Suppose if 3 persons are doing their business within the partnership, if one got expire or death, otherwise he is going to retire, so there will be the chances of that business is going to stop at that point. Otherwise these 2 persons can run their business with the new agreement. मतलब क्या है लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कितने भी पार्टनर मिलकर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें से कोई का किसका तो डेथ हो गया, कोई तो रिटायर हो गया, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आर देयर, बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता। बट आप कंटिन्यू करना चाहते हो आपका बिजनेस, तो आप जितने भी पार्टनर अभी यहाँ 3 थे, एक का डेथ हो गया, एक रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, 2 पार्टनर्स है तो 2 पार्टनर्स फिर से एक नया एग्रीमेंट बना के वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो लिमिटेशन, क्योंकि फिर से न्यू एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, सो दैट इज अ डिफिकल्ट। एंड लास्ट वन लिमिटेशन दैट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, सो लो पब्लिक कॉन्फिडेंस, नॉट पब्लिशिंग देयर अकाउंट्स। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस मतलब जो भी लोग रहते हैं, मे बी आपके कस्टमर रहेंगे, जो भी रहेंगे, जो लोग रहते हैं वो आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं कि यू आर रनिंग योर बिजनेस विद इन द पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि आपका जो भी अकाउंट्स रहता है, मैंने अभी बताया अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपने देखा होगा, आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना खर्च किया है, डेबिटेड क्रेडिटेड और सब लिखना पड़ता है अकाउंट
अकाउंट्स में, और अकाउंट्स को आपको गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, उसका इंस्पेक्शन होता है। बट पार्टनरशिप बिजनेस में वो कंपलसरी नहीं है कि आपका अकाउंट्स जो भी है वो कंपलसरी दिखाने का कुछ भी जरूरत नहीं है वहाँ पे। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि आपके ऊपर ही आपके अकाउंट नहीं देखेंगे, यहाँ करप्शन होने के चांसेस रहते हैं। सो इसलिए पब्लिक लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। सो पीपल आर नॉट ट्रस्ट ऑन इट। मतलब आपके अकाउंट ही नहीं दिखाने, मतलब ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं कि आपका अकाउंट दिखाना चाहिए, बट आप अकाउंट्स नहीं दिखाते, इसकी वजह से लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं रखते। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेन डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, सो आई होप यू गॉट द क्लियर concept about what are the advantage and you can call the merits and limitation, or you can call the disadvantage of partnership. Suppose if you have any doubt, please comment below. I will solve your problem. So thank you so much. Bye bye. Take care.